Hello friends, I am Gaurav Marwaha, Director Unique IS. Today I have brought a very important topic in front of you, that is China's territorial disputes. Dear friends, China is not having standoff with India. It has territorial disputes with more than 21 nations. Beside it, it has number of trade issues. It has currency war. So dear friends, let us start a very important topic, the China's territorial disputes. So hi friends, so today I am bringing the China's territorial disputes with the neighboring nations part 4. We have already seen part 1, part 2 and part 3, and we have seen the China's territorial disputes with 15 nations. Now we will, in part 4, we will discuss the China's territorial disputes with the remaining 6 nations. So here is part 4. So China is having a dispute with a neighbor, Tajikistan. Tajikistan is a mountainous landlocked country in Central Asia, and most of its population belongs to Tajik. Tajik is basically a dialect of Persian, यानी जो ईरानी समूह की भाषाएं हैं उन्हीं में से एक भाषा है तजाक. And in Tajikistan, Russian is also spoken, and the Russian integrates the different ethnicity of Tajikistan. यानी यहाँ रूसी भाषा जो है विभिन्न यहाँ के जो जनजातीय समूहों को जोड़ती है. आप देख रहे हैं, दिस इज तजाकिस्तान एंड दिस इज तजाकिस्तान चाइना बॉर्डर. दिस इज तजाकिस्तान China border. This is Murgab. This is Dushanbe. So this is a huge border between China and Tajikistan. And Tajikistan के अगर आप साउथ में देखें तो आप देख रहे हैं ये एक बड़ी लंबी सी एक आप देख रहे हैं बेल्ट है. This belongs to Afghanistan. So to the south of Tajikistan there is in Afghanistan, and this is small land but a long land. It separates Tajikistan with Pakistan, and this is the China-Tajikistan border. So although 98% of the population of Tajikistan is Islamic, but still constitutionally it's a secular nation. तो ये बड़ी विचित्र बात है कि 98% पॉपुलेशन यहाँ की इस्लामिक है, फिर भी एक ये पंथ निरपेक्ष और धर्म निरपेक्ष राष्ट्र है ये. और यहाँ की जो बेसिक इकनॉमी है, इट इज़ ए माउंटेनियस इकनॉमी. इट डिपेंड्स अपॉन नोमैडिज्म, यानी खाना बदोशी पे ये निर्भर करती है. जो तजाकिस्तान बेसिकली माउंटेन है, तो यहाँ पे जो ट्राइब्स होती हैं जो भेड़ों को चराना और जो बेसिकली प्रिमिटिव टाइप की इकनॉमी है वो इनकी है. बट नाउ देयर इकनॉमी इज़ इन ट्रांजिशन, तो थोड़ा थोड़ा मॉडर्निटी आ रही है. एंड चाइना क्लेम्स दैट ड्यूरिंग द क्विंग डायनेस्टी तजाकिस्तान वाज ए पार्ट ऑफ चाइना. तो चीन का ऐसा मानना है कि क्विंग काल में जो तजाकिस्तान है वो चीन का हिस्सा था, इसीलिए अब ये चीन के पास होना चाहिए. एनीवे, एक और कंट्री की बात करें, कम्बोडिया. आपने नाम सुना होगा. तो कम्बोडिया is situated to the south portion of Indo-China Peninsula in Southeast Asia. तो दक्षिण पूर्वी एशिया का महत्वपूर्ण देश है ये कम्बोडिया, देख लीजिए. और ये चाइना. सो चाइना हैज़ ऑल्सो क्लेम ओवर कम्बोडिया, यानी चीन ने किसी को भी छोड़ा नहीं है. सो कम्बोडिया इज़ एन इंडियनाइज्ड किंगडम. It was the center of Hinduism. It had more than 1,000 temples, and it has a world famous temple which is known as Angkor Wat, which is currently in the World Heritage List. तो ये है अंकोर वाट का प्रसिद्ध विष्णु मंदिर जो विश्व सांस्कृतिक धरोहर सूची का भी एक हिस्सा है. And this temple complex in Cambodia is the world's largest religious monument in the world.
और दुनिया के में जितने भी धार्मिक स्थल हैं ऐसा माना जाता है कि सबसे बड़ा धार्मिक स्थल अंकोर वाट का विष्णु मंदिर है। एक तरीके से जो कह सकते हैं कि हिंदुस्तान के मंदिरों से भी बड़ा मंदिर अंकोर वाट का विष्णु मंदिर है। So this Hindu temple is devoted to Lord Vishnu and it was constructed by Suryavarman II of the Khmer Empire. So China claims that during the Ming dynasty Cambodia was a part of China. तो मिंग काल में चीन का ऐसा मानना है कि कंबोडिया उनका एक भाग था। तो इस तरह से आप देख रहे हैं चीन किसी को नहीं बख्शता। सो अनदर किंगडम पे आ जाएं, किर्गिस्तान। सो दिस इज आप देख रहे हैं दिस ग्रीन पोर्शन दैट इज चाइना, और ये जो देख रहे हैं आप दिस इज किर्गिस्तान। So China believes that Russia has illegally occupied Kyrgyzstan from China, hence now China has a claim over Kyrgyzstan. तो चीन का ऐसा मानना है कि रूस ने अपने शक्ति से किर्गिस्तान को चीन से छीन लिया था, तो अब वापस चीन के पास किर्गिस्तान होना चाहिए। So nowadays China is promoting bilateral trade with the Kyrgyzstan and China is promoting its economic imperialism over there. So एक और कंट्री पे आए, मलेशिया। ये देख रहे हैं दिस इज मलेशिया, साउथ चाइना सी के साउथ में है मलेशिया। एंड चाइना हैज़ क्लेम ओवर मलेशिया एंड इट हैज़ डिस्प्यूट विद मलेशिया रिलेटेड विद द स्पार्टले आइलैंड। हम बहुत डिटेल में स्पार्टले आइलैंड देख चुके हैं। सो अनदर कंट्री इज द मंगोलिया एंड चाइना हैज़ क्लेम इवन ऑन मंगोलिया। सो आप सबने गोबी डेजर्ट का नाम सुना होगा। गोबी डेजर्ट इज द एशियाज लार्जेस्ट डेजर्ट। जो आपने सुना होगा कि जो एशिया का जो सबसे बड़ा डेजर्ट है गोबी डेजर्ट, आप जानते ही होंगे वो मंगोलिया में है। और आपने एक डायनेस्टी, इंडिया की फेमस डायनेस्टी सुनी होगी, द मुगल्स। सो हाउ द टर्म मुगल इज डिराइव्ड? सो द टर्म मुगल derives from the term Mongol. So those Mongols who converted themselves to Islam, they are known as Mughals. तो ऐसे मंगोल जिन्होंने मध्यकाल के आरंभ में अपने आप को इस्लाम में परिवर्तित कर दिया था, उन्हें मुगल कहा गया। और आप समझ ही गए मुगल से मुगलाई और मुगलाई क्यूसाइन के बारे में। सो ये वही मंगोलिया के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। सो मंगोलिया इज द वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट लैंडलॉक्ड कंट्री आफ्टर द कजाकिस्तान एंड मंगोलिया इज फेमस फॉर गोबी डेजर्ट। और इस गोबी डेजर्ट में आप देख रहे हैं कैमल, ऑल्दो द कैमल्स आर इन डेजर्ट। बट एक बहुत खास बात है कि जो इंडिया का थार है उसमें आपने देखा जो कैमल पाए जाते हैं सिंगल हम्प्ड होते हैं, यानी एक ही ऊपर हम्प होता है। यहाँ आप देख रहे हैं गोबी में जो कैमल है ये डबल हम्प्ड है। तो ये खासियत है मंगोलिया के कैमल में। एंड सिमिलर काइंड ऑफ कैमल आर ऑल्सो फाउंड इन आवर लद्दाख एरिया। तो ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। और चाइना क्लेम्स मंगोलिया एंड जो उलान बतर इज द कैपिटल एंड द लार्जेस्ट सिटी ऑफ मंगोलिया। एंड मंगोलिया की भी 30% जो पॉपुलेशन है नोमेडिक है। China claims that all of Mongolia, this is Mongolia, this is China, all of the Mongolia belongs to China because of the historical precedents, like in Yuan dynasty Mongolia was a part of China. So the China's demand are never fulfilled. There is no comma and there is no full stop on that. So now another country number 21, which has the China has dispute over that. So you must have heard about Afghanistan. So dear friend, this is Afghanistan. So Afghanistan is known for the terrorist groups. It has one of the most poverty. It has one of the longest civil war. It is the area which has given a terrorist group like Taliban. आप सभी ने तालिबान के बारे में सुना होगा, वो अफगानिस्तान का ही ग्रुप है। और आप देख रहे हैं जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच का जो ये नो मैंस लैंड है, माय डियर फ्रेंड्स, दिस एरिया इज नोन एज द गोल्डन क्रेसेंट बिकॉज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट नार्कोटिक्स आर प्रोड्यूस्ड इन दिस एरिया। Afghanistan, Pakistan, no man's land is known as the golden crescent. Why the term golden and why the term crescent? Golden, why the term golden? Because
the agriculture of narcotics is there between Afghanistan and Pakistan, and it gives huge money and gold, hence the term golden. तो दुनिया में सबसे ज़्यादा जो मादक पदार्थ हैं उनकी कृषि इसी क्षेत्र में होती है, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच के नो मैंस लैंड में. So China claims this area Badakhshah of Afghanistan. So चीन अफगानिस्तान के बदख्शा एरिया पे को भी अपना क्षेत्र बताता है. So this is how, friends, you have seen that China sometimes claim on historical basis, sometimes on territory basis, sometimes on trade basis. So the demand of China are never ending. So it's time that world community should make a common front, and when world community should make a comma and full stop against the Chinese aggression, whether it is a military aggression or it is a currency trade or it's a world trade. So हम पूरा विश्व समुदाय को अब जागृत होना है और चीन को विभिन्न मोर्चों पे रोकना है. चाहे वो साइबर वार का मोर्चा हो, उस पे चीन को रोकना है. चाहे वो स्ट्रिंग ऑफ पल्स हो चीन की, चाहे वो चीन का करेंसी वॉर हो, और चाहे किसी भी प्रकार का चीन का वर्ल्ड में एग्रेशन हो, अब उसे वर्ल्ड कम्युनिटी को रोकना है. अदरवाइज द थर्ड वर्ल्ड वॉर इज इनएविटेबल. अगर वर्ल्ड कम्युनिटी ऐसा नहीं करेगा तो वर्ल्ड कम्युनिटी को थर्ड वर्ल्ड वॉर के लिए तैयार रहना चाहिए. एंड यू हैव सीन दैट द origin of COVID-19 is from China, and China has no issues related with that. और चीन इसको कभी स्वीकार नहीं करता और इसके लिए कोई कार्य नहीं करता. So friends, just we should be enlightened enough about all these happenings, and we should take collective action. Thank you very much. Friends, I hope you have liked this video. Kindly share and subscribe it. Thank you very much.